बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से 8वीं बार खताब का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सदर का खताब पार्लियामेंट से एक रवायत है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन की तरफ से कोई भी सदर हो, उसके खिलाफ एहतजाज करना ये भी एक रवायत बन गई है। तो नाज़रीन कराम, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मौजूदा हुकूमत का दूसरा साल शुरू होने पर पार्लियामेंट से खिताब किया। पार्लियामेंट क्या हुआ सभी लोग जानते हैं, और पार्लियामेंट पे अपोजिशन ने जो सदर का स्वागत किया वो भी सबको मालूम है। लेकिन सदर ममलकत का जो खिताब हुआ है वो बड़ा मानी खेज है। वो हुकूमत के लिए भी एक धमकी है, और वो लोग जो हुकूमत चला रहे हैं उनको भी एक इंतबाह है। ये सदर ममलकत का जो खिताब है ये मामूली नौइयत का नहीं है, इसमें बड़ी बातें हैं जिनकी तरफ सदर आसिफ अली जरदारी ने इशारा किया है। नाज़रीन कराम, कबल इसके आगे बढ़े, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आप साथ शेयर करें। Chairman Senate Sayyid Yusuf Raza Gilani, Speaker National Assembly Sardar Ayaz Sadiq, Prime Minister of Pakistan Muhammad Shahbaz Sharif, members of the Parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is my singular privilege as your civilian president to address for the 8th time the August House at the beginning of another parliamentary year. This moment marks not only the continuation of our democratic journey, but also provides us with an opportunity to review our progress and reaffirm our commitment to building a better future for Pakistan. As we embark on this new parliamentary year, I urge this House to focus on promoting good governance and political economic stability. Our people have pinned our hopes on Parliament, and we must rise to the expectations. It is my first duty to remind you, we need to work harder to strengthen our democratic system, restore public confidence in the rule of law, and grow Pakistan on the road to prosperity. I would like to appreciate the government's efforts putting the country on a positive path to economic growth. Our foreign exchange reserves have witnessed a surge. There was a substantial increase in foreign direct investment, and the stock market also surged to a historic high. The government has also reduced the policy rate from 22 to 12%, and all other economic indicators have shown a healthy and sign improvement. Honorable members, you are aware the population dynamics of our country have changed. A combination of factors present challenging. We must address the high rate of our population growth along with strategic drift in our administrative machinery has increased governance issues manifold. It is my considered opinion that this House
should take this responsibility seriously and play its role in rail and reset our governance and service delivery outcomes. As far as the government is concerned, ministries need to redefine their vision and objectives and understand that pressing issues faced by the people of Pakistan have to be resolved within a certain time frame. We need to deliver tangible benefits, restore trust of the people in democratic institutions. Democracy needs and give and take. And what better place to work of collective goals than this Parliament? As elected representatives, your function is role models for the nation. नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी का कोई मदाह नहीं हूँ, और जैसे लोग मुझे ये भी समझते हैं कि शायद मैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का भी बड़ा मदाह हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी वो खराबियाँ मौजूद हैं जो दूसरी जमातों में मौजूद रही हैं और दूसरी हुकूमतों में। ये पंजाब के पानी की तकसीम जो है दरियाए सिंध से, इसका झगड़ा रहा है। 1990 में मियाँ नवाज शरीफ ने एक इरसा के तहत एक अदारा कायम किया और उसके तहत दरियाए सिंध और बाकी दरियाओं का पानी की तकसीम का एक मायदा किया। पाकिस्तान के अंदर पानी की तकसीम पर सिंध बिलखसूस और दीगर दो सूबे KPK और बलूचिस्तान अपने तहफ़्ज़ात रखते रहे। ये कालाबाग डैम की जो तामीर नहीं हो सकी, उसकी भी बुनियादी वजह यह है कि सिंध हमेशा इस बात की मुखालफत करता रहा है कि दरियाए सिंध पर कोई ऐसा नया डैम ना बनाया जैसे से सिंध के पानी में कमी आ जाए। मुझे मालूम है कि इस वक्त 5 या 6 कालाबाग डैम बने हों, उतना पानी हमेशा दरियाए सिंध में ज़ाया हो जाता है। लेकिन इस दरियाए सिंध में जो पानी ज़ाया होता है, कच्चे के इलाके में जो खेत होते हैं, जो ज़मीनें हैं, उनको सैराब कर जाता है। और सिंध के ज़मींदार किसी कीमत पर नहीं चाहते कि दरियाए सिंध का पानी पीछे रोका जाए और पंजाब का भी अगर हिस्सा बनता है तब भी उसे ना दिया जाए और फेडरेशन को चैलेंज किया जाए। ये इस वक्त हुकूमत तो बनी हुई है मुस्लिम लीग नून और सपोर्टेड बाय पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी का जब जी चाहते हैं आंखें भी दिखाती है। एक तो उन्होंने हुकूमत साजी में आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने लिए सदारत, फिर चेयरमैन सेनेट की निशस्त, डिप्टी स्पीकर, 2 गवर्नरियाँ और कुछ और भी बहुत कुछ ले लिया। लेकिन भी वो पूरी तरह हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सदर मुल्कत की तकरीर हमेशा हुकूमत लिखती है, अपने तारीफ़ों तौसीफ का उसमें ज़िक्र भी करती है, लेकिन सदर मुल्कत ने एक पैरा जो उसमें पढ़ा है वो बिल्कुल वो नहीं है जो हुकूमत ने लिख कर भेजा है। और जो कहा गया, ये चारों इकाइयों की तरफ से वफाक पर एक दबाव बढ़ रहा है कि आप सिंध के पानी पर हम आपकी हिमायत नहीं कर सकते। सिंध में ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भी है कि आसिफ अली जरदारी अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए दरियाए सिंध के पानी की तकसीम पर खामोश हैं। तो फिर आखिर फिर सदर ने पार्लियामेंट में अपनी इस खामोशी को तोड़ा। एक लिहाज से उन्होंने थ्रेट भी किया, एक लिहाज से उन्होंने गाइड भी किया और उन्होंने कहा कि आप ऐसा न करें,
अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर इस पर शदीद रद्द-ए-अमल होगा। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ जो नई नहरें निकालना चाहते हैं, जो पंजाब का हक बनता है, वो अब सिंध की तरफ से आंखें दिखाने और सिंध दी क़यादत जो है वो उसकी बागियाना रवश के बाद उसे ये छोड़ना पड़ेगा। ये बात सोचने की है कि कहा तो जाता है कि जनाब आसफ अली जरदारी की जो जान है वो पिंडी में जो है उनके तोते में है, लेकिन आसफ अली जरदारी ने तो ऐसा पता खेला है कि एक लिहाज से उन्होंने जहाँ हुकूमत को बताया कि वो ऐसी गलती ना करे, वहाँ उन कुत्तों को भी बता दिया है कि जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रही थी और उन्हें आमादा कर रही थी कि वो नहरें खोदें। नहरें खोदना कोई बुरी बात नहीं थी, इसमें तो सिर्फ टेक्निकल बात है कि जब पानी ज़ाया होता है उसका कौन जिम्मेदार है। पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगी बिजली है उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में KPK और सिंध ने डैम नहीं बनने दिए दरिया सिंध पर। काश के कालाबाग डैम बन चुका होता, काश के इस तरह के और डैम बन चुके होते, तो आज कम से कम हमें डैमों के ज़रिए जो बिजली हासिल होती है, जो पानी के ज़रिए हासिल होती है, वो सस्ती बिजली हासिल होती। लेकिन इन दो सूबों की ज़िद की वजह से आज हम महंगी बिजली खरीद रहे हैं। फिर इन दो सूबों में बिजली चोरी सबसे ज़्यादा होती है, उसका बोझ भी पाकिस्तान के तमाम बिजली के सार्फिन पर पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये है कि आसफ अली जरदारी ने मुस्कुराते हुए और बड़े हौसले के साथ PTI के लोगों को एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए तकरीर तो मुकम्मल कर ली, लेकिन PTI को भी ये सोचना चाहिए इस तर्ज अमल से तो कोई बड़ा कारनामा सरंजाम नहीं हो सकता, मास इसके अलावा कि वो इमरान खान को ये बता सकें कि हमने आपकी रिहाई और आपके लिए बड़ा कुछ पार्लियामेंट में हंगामा बर्पा किया। ये बात भी तय थी, स्पीकर और कौमी असम्बली में अपोजिशन के साथ कि वो डाइस की तरफ नहीं आएंगे और अपनी जगह बैठकर वो एहतजाज करेंगे। इमरान खान के नारे भी लगे, उनकी रिहाई के लिए भी बातें हुई। इमर अयूब खान भी अपना रोब दबदबा उनका कायम हुआ और उन्होंने ज़ाहिर किया कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए सबसे आगे हैं। ये एक ऐसा काम है कि आप कह सकते हैं कि अपोजिशन की तो वाह वाह होनी है। वहाँ देखें, ये अपोजिशन के गैर मुफाहमाना और गैर महज़ब आप कहते हैं रवैया कहने की वजह से दूसरी बार फौज के सरबराहान पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के खिताब के दौरान नहीं आ रहे। ये भी एक सोचने वाली बात है। इसका मतलब यह है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस मौका पर नहीं शरीक होना चाहती कि उनमें से कुछ लोग कहीं उनके खिलाफ कोई अर्जा सराई करें। ज़ाहिर मुतात रवैया उन्होंने इख्तियार किया, नहीं आए। इसका मतलब यह है कि उनकी भी नज़रें हैं कि इनका रवैया ठीक नहीं है। अगर ये समझते हैं कि ये भी इनकी बड़ी कामयाबी है कि हमने अपने ऐसा रवैया इख्तियार किया कि वो नहीं आ रहे, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, होना ये तो चाहिए कि उनके तलकात अच्छे हों उनके साथ, और कोई ऐसा नारा, कोई ऐसी बात ना मायूब ना चीज़ ना की जाए जिससे वो यहाँ कोई उनके लिए कोई एम्बैरसमेंट हो। लेकिन बहरहाल PTI को जो एजेंडा मिला, PTI के अरकान को जो नारेबाजी हुई, ये तो वो अपना राइट भी समझते हैं और ये इसी काम पे लगे हुए हैं। तो चलें, कोई बात नहीं। खान साहब के कारकुनों ने अरकान ने अपना मुजाहरा कर लिया, आसफ अली जरदारी अपना खिताब करके, और फिर खिताब के बाद भी वज़ीर आज़म और जनाब चेयरमैन सेनेट और सदर और जनाब इसहाक डार, ये सारे लोग फिर मिलकर भी बैठे। अब देखते ही हैं कि नहरों की खुदाई का जो मंसूबा था वो शहबाज शरीफ का पाया तकमील तक पहुंचता है या फिर ये टाइम फिच हो जाता है। आने वाले दिनों में तो यही लगता है कि आसफ अली जरदारी
को अपनी हुकूमत बचाना अवलीन तरजीह होगी, वो ऐसे किसी बड़े पंगे में शरीक नहीं होंगे। लेकिन ये पंजाब के अवाम के साथ ज़्यादती है, उनका हक तो उन्हें मिलना चाहिए। क्या वो अपना हक भी नहीं हासिल कर सकते? पंजाब के अंदर से पानी गुजरता है और पंजाब की ज़रूरियात भी हैं, और सिंध के अंदर जो पानी ज़ाया होता है उसका भी कौन जिम्मेदार है? चलिए देखते हैं आसिफ अली जरदारी अपने इस धमकी में कामयाब होते हैं या इस धमकी को उन्हें बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। शुक्रिया।